Everyone is requested to take their seats. May I request the Director cum Vice Chancellor of ICR IVRI deemed University to declare the 11th convocation open. I declare the 11th convocation open. The Director cum Vice Chancellor IVRI is requested to deliver the welcome address and present the Director's report, please. A very good morning to all of you. It is a matter of immense honor and pride for all of us to welcome the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, whose gracious presence has elevated this significance of this occasion. On behalf of IVRI family, I extend a sincere and heartfelt welcome to Honorable Governor Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji. I also extend sincere and heartfelt welcome to Honorable Chief Minister Youth Uttar Pradesh, Sri Yogi Adityanath ji. My heartfelt thanks to Honorable Union Minister Agriculture and Farmer Welfare and Rural Development, Sri Shivraj Singh Chauhan ji. I also extend a sincere and heartfelt thanks to Honorable Governor Jharkhand, Sri Santosh Kumar Gangwar ji. My heartfelt thanks to Honorable Minister of State, Agriculture and Farmer Welfare, Sri Bhagirath Chaudhary ji. My sincere welcome to Honorable Secretary DARE and DG Indian Council of Agriculture Research, Dr. Maghi Lal Jat ji. My sincere heartfelt welcome to Honorable DDG Animal Science, Raghavendra Bhatta ji. I also extend my warm welcome to esteemed dignitaries present in the hall and dear students. IVRI established in 1889 and is a premier institution for veterinary research and education. The institute started training 1900, Postgraduate College of Animal Science in 1958, granted deemed university status in 1983. Institute has 3 campuses and 3 regional centers across the country. IVRI has made significant contribution to animal health, including the successful eradication of 4 major diseases and 1 disease rinderpest from the globe. Currently, Institute is actively involved in controlling 4 diseases under National Animal Disease Control Program. To recognize Institute's contribution, Government of India has issued a special postal cover and stamp on 9 December 2014. IVRI provides services of national importance, including quality control testing of vaccine, supply of biologicals, disease diagnosis, wildlife healthcare management, and 24/7 treatment services. IVRI also provides services to the nation through various 6 ministries. IVRI is maintaining 14 precious germplasm of livestock and developed 2 breeds and registered 3 breeds of livestock. IVRI has commercialized 47 technologies, including 13 vaccines to 163 commercial houses. Institute has registered 107 IPRs, developed 109 ICT tools. In 2024, IVRI implemented 210 research projects, including
87 externally funded with a total funding of 150 crores and published 310 research papers with average impact factor of 2.47 per paper. During 2024, we organized 1,400 community outreach programs covering 1.4 lakhs beneficiaries. IVRI has also developed 40 startups and 216 entrepreneurs. IVRI deemed university currently offering 39 UG programs and PG academic programs and 90 other courses like diploma, certificate and vocational courses. University has annual intake capacity of 420 students and presently 912 students on roll. So far, IVRI has awarded total 5,600 degrees with 100% placement. Today, 579 degrees and 65 awards will be conferred. We wish to express profound gratitude to the Honorable Chief Guest and Guest of Honor for gracing this occasion with their esteemed presence. Thank you once again. Dhanwad. Jai Hind. Thank you, sir. Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development and President ICR, Shri Shivraj Singh Chauhan ji is requested to kindly felicitate the Chief Guest, the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu ji. Secretary DARE and DG ICR is requested to felicitate Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shrimati Anandi Ben Patel ji. Director cum Vice Chancellor, IVRI is requested to felicitate Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. Secretary DARE and DG ICR is requested to felicitate Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chauhan ji. Sir, I request you to felicitate Honorable Governor of Jharkhand, Shri Santosh Kumar Gangwar ji. Director cum Vice Chancellor, IVRI is requested to felicitate Honorable Union Minister of State, Agriculture and Farmers Welfare, Shri Bhagirath Chaudhary ji. Thank you, sir.
Now, may I request Joint Director Academic and Dean IVRI to present the students for the award of degrees. Sir, I present to you 104 candidates of Doctor of Philosophy, 184 candidates of Master of Veterinary Science, 36 candidates of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry who have been examined and found qualified, to which I pray that they may be admitted. Sir, I present to you, by virtue of the authority vested in me as the Director cum Vice Chancellor, Indian Veterinary Research Institute, deemed university, I admit to the degree of Doctor of Philosophy, Master of Veterinary Science, and Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. And I charge you that ever in your life you prove worthy to the same. Thank you, sir. Joint Director Academic and Dean IVRI is requested to present the students for award of degrees in absentia. Sir, 255 candidates who have been examined and found qualified for the award of degree of Doctor of Philosophy, Master of Veterinary Science, and Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry are unable to present in person. I therefore pray that they may be admitted to the respective degrees in absentia. By virtue of the authority vested in me as the Director cum Vice Chancellor of the IVRI deemed university, I admit the candidates to the degree of Doctor of Philosophy, Master of Veterinary Science, and Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry in absentia. Thank you, sir. We shall now commence the presentation of Honoris Causa Award. To confer the honor, I respectfully invite Honorable Chief Guest, Srimati Draupadi Murmuji. I request other dignitaries on the dais to accompany her, please. The Doctorate of Science Honoris Causa is awarded to Professor Dr. Pradeep Kumar Joshi ji, Honorary Chairman to the National Testing Agency, Chancellor CAU Imphal, Prag Jyotispur University, Guwahati. Professor Joshi has made outstanding contribution to higher education, reform in public administration and recruitment in public service in the country. He served as Chairman and member UPSC, Chairman Chhattisgarh and Madhya Pradesh Public Service Commission and Director NIPA. IVRI deemed university recognizes the outstanding and meritorious contribution of Professor Dr. Pradeep Kumar Joshi by awarding him the degree of Doctorate of Science Honoris Causa. Doctorate of Science Honoris Causa is awarded to Dr. Mangilal Jatji, a distinguished system agronomist, currently serving as Secretary DARE and DG ICR. Prior to this, he was the DDG Research and Director of the Global Research Program at ICRISAT. He also served at CIMMIT and IRI. IVRI deemed university recognizes the meritorious contribution of Dr. Magilal Jatji by awarding him the degree of Doctorate of Science Honoris Causa. Thank you. May I now request Honorable President of India to present the prestigious gold medals to our meritorious students. The gold medalists for the doctoral degree program are Dr. Rajkumar Patel for the academic year 2021-2022, Dr. Megha Sharma for the academic year 2022-2023, Dr. Navjot Singh Thakur for the academic year 2021-2022,
Dr. Khushbu Chaudhary for the academic year 2023-24. Dr. Tanya Chaudhary for the academic year 2023. Dr. Atul Pratap Singh for the academic year 2024. We now come to the end of award ceremony. All the dignitaries are requested to please be seated. Now, I kindly request the Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chauhan ji, to address the convocation gathering, please. हमारे सौभाग्य से हमारे बीच पधारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिवेणी संगम जिनमें दिखाई देता है, श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की कर्मठ राज्यपाल जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मध्य प्रदेश में मिला, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के निष्काम कर्म योगी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, झारखंड के माननीय राज्यपाल और लंबे समय तक जिनके पास लोकसभा में रहने का मुझे सौभाग्य मिला, आदरणीय संतोष गंगवार जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, आईसीआर के डीजी जिनको अभी सम्मानित किया गया है, मांगीलाल जाट जी, राघवेंद्र भट्ट जी, त्रिवेणी दत्त जी, यहां उपस्थित अकादमिक परिषद के सभी सदस्यगण, संस्थान के सभी संयुक्त निदेशक, विभाग अध्यक्ष, संकाय सदस्य, विशिष्ट अतिथि और जिनको आज उपाधि मिल रही है, ऐसे प्रिय विद्यार्थी भांजे और भांजियों, सबको प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में आज आपके बीच आया हूं। IVRI केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की ग्रामीण जीवन शैली, पशुपालन संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का आधार है। आज मैं विस्तार से उपलब्धियों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन यहां से निकले वैज्ञानिकों ने न केवल पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि ग्रामीण विकास, आजीविका, दुग्ध उत्पादन, टीका अनुसंधान, रोग निदान और जैव सुरक्षा जैसे मामले में केवल देश को नहीं, दुनिया को भी दिशा देने का काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपने विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहता हूं, ये डिग्री प्राप्त करने का केवल समारोह नहीं है, नया उत्तरदायित्व आपके कंधों पर आया है। प्रिय बेटे बेटियों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये तुम्हारी उपाधि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये देश की सेवा के लिए और प्रगति और विकास में योगदान देने के, नए आयाम गढ़ने के लिए है।
तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, और भारत का जो मूल है, एक ही चेतना हम सब में है, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम। लेकिन भारत ने केवल मनुष्य मात्र की चिंता नहीं की। आज भी भारत के गांव गांव में बच्चा बच्चा कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों की चिंता करने वाला भी हमारा देश, और विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में पशु आते हैं, उनके बिना मानव का जीवन भी नहीं चल सकता। वो हमारे लिए केवल आजीव का आधार नहीं, भारत में तो उनको श्रद्धा का केंद्र भी माना गया है। गाय हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का वास है, यह अवधारणा हर भारतीय के मन मस्तिष्क में बैठी है। और वैसे भी हम आज देखें तो आजीविका की दृष्टि से भी इनके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ये स्वस्थ रहें, उन्नत नस्लों का विकास लगातार होता रहे, बीमारियों से निपटने के उपाय खोजे जाते रहें, टीके बनाने से लेके अनेकों क्षेत्रों में आपने काम किया है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। इस बार हमने एक प्रयोग किया। वैज्ञानिक लैब में बैठते हैं हमारे, और वहां रिसर्च करते हैं, और किसान या पशुपालक गांव में बैठा है, वो खेत में काम करता है। कई बार ये लैब टू लैंड मिलते ही नहीं थे। इस बार हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से यही विनम्र कोशिश की कि वैज्ञानिक गांव में जाए, किसानों के बीच में, पशुपालकों के बीच में, और वहां जमीन पर कैसे रिसर्च की जरूरत है ये तो देखें। आपका रिसर्च केवल पेपर लिखने के लिए नहीं है, आपके रिसर्च का रियल टाइम में लाभ मिलना चाहिए किसान को, पशुपालकों को। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक निकले और कई नई जानकारियां मिली। हमने खेतों में देखा कि कई बार तो खेत में बैठा किसान भी वैज्ञानिक है। 300 से ज्यादा ऐसे प्रयोग किसानों ने किए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन प्रयोगों को कैसे और साइंटिफिक तरीके से हम उनको और समृद्ध करके हम भेज सकते हैं नीचे। और जमीन पर जिस तरह की समस्या आ रही है, पशुपालन के बिना खेती लाभ का धंधा बन नहीं सकती, केवल फसलों से काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो, बाकी भी आयाम है उसके, इसलिए पशुपालन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस क्षेत्र में हमने अद्भुत काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आगे निरंतर लगातार काम करते रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत के निर्माण का महाअभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, जिसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए निरंतर उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। अंत में मैं फिर एक बार अपने सभी उपाधि धारक बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं कि नए उत्तरदायित्व के साथ आप मैदान में उतरिए। इसका उपयोग जरूर करना, इस ज्ञान का। ये ज्ञान देने में समाज भी बहुत खर्च करता है आपके ऊपर, इसलिए इसका रियल लाभ हम किसानों को, पशुपालकों को, समाज को कैसे दे पाए, इसका प्रयत्न जरूर करना। मैं स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा कि तुम अपने आप को ये मत मानना कि हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। पढ़ने के बाद तुम्हें बड़ा काम करना है, महान काम करना है, और याद रखना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है।
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिस क्षेत्र में भी जाके, देश के जिस हिस्से में भी जाके काम करोगे, नए आयाम स्थापित करोगे अपने देश के लिए, समाज के लिए और पशुओं के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। I kindly request the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, to address the convocation gathering, please. IVRI के इस 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इसी माटी के सपूत और झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, कृषि और कृषि कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथी चौधरी जी, सचिव DARE और DG ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, डायरेक्टर कम वाइस चांसलर ICAR एवं IVRI डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, IVRI के यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, सभी अभिभावकगण और मेरे सभी युवा साथियों, उपाधि धारण करने वाले, प्राप्त करने वाले सभी यहाँ के उपाधिधारक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी, जिसे हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक हैं। मंदिरों की ये श्रृंखला जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन
एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरवमयी क्षण है जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है, IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गोवंश इसकी चपेट में आने लग गया। हम लोग चिंतित थे। उस समय मैं देख रहा था कि हमारी नौकरशाही इसकी परमिशन नहीं दे रही थी टीके की। और संजोग ये था कि गोरखपुर में हमारे मठ की गौशाला के भी कुछ गोवंश इसकी चपेट में आ गए। तो मैं स्वयं वहां गया, IVRI के वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया। उन्होंने वहां पे कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना होगा, लेकिन वैक्सीन अभी परीक्षण के उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे पाएंगे। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं यानी चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने, जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं यहां के इन सभी वैज्ञानिकों को हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन मूक पशुओं के आवाज को
आपने अपने शोध के माध्यम से एक नया जीवन में परिवर्तित करके अन्नदाता किसानों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्नत नस्ल के पशुधन दे करके, उन्नत नस्ल के उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले उस सभी प्रयासों में आप सहभागी बने हैं और 136 वर्ष के साधना इस परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय संतोष गंगवार जी का, माननीय श्री भागीरथी चौधरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Dhanyawad, sir. May I now invite the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shrimati Anandiben Patel ji, to kindly address the convocation gathering, please. दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि और भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज चौहान जी, माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष गंगवार जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा ICAR के महानिर्देशक डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के निर्देशक एवं कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के डीन डॉक्टर संजोत कुमार मेदिरत्ता जी, संस्थान के समस्त पूर्व निर्देशकगण, कुलपतिगण, अतिथि विशिष्टजन
एवं वैज्ञानिक भाई और बहनों, प्रिय छात्र और छात्राएं, देवी और सज्जनों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। और यही काम हमारा सबका है मित्रों। मैं आज इतना ही बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां है, जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो तो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, और ये चिंता ये थी कि देखिए भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है। हमें सब प्रयास करके हमारी जितनी जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियां है, इसमें मेहनत करके, बैठकर, सोचकर, मार्गदर्शन के कर वहां क्वालिटी एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और जो खुटती कड़ियां है वो करना है। और दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, नए नए हमारे अभ्यासक्रम करना है, और बच्चों में जो टैलेंट है वो सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हैं, और समाज को जो जरूरत हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को बताइए। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया मित्रों, और कृषि यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में 5 हैं, 4 कृषि यूनिवर्सिटी, 1 पशुपालन वेटरनरी। जब मैंने कहा कि हम लोग NRI में जा रहे हैं और नेक मूल्यांकन लिखिए, हमें प्रयास करना है, तब पहले ही मेरे सामने ये आया कि हम तो ICAR जो कहेगा वो ही करेंगे। मैंने कहा नेक कहेगा वो नहीं करोगे, NRI जो चाहता है वो नहीं करोगे, नहीं, लेकिन हमें करना ही है। जब तक हम ऐसे क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास करें, और हम कहाँ हैं, हमारी कमियां क्या है, हमारी खूबियां क्या है, जरूरत क्या है, समस्या क्या है, ये जब तक हम इसके सामने रखकर काम नहीं करेंगे, तब तक किसी को फायदा होने वाला है नहीं है। सिर्फ 200 एकड़ जमीन में हम बैठे रहते हैं, और बाहर जाकर काम करना चाहिए, मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। आसपास के गांव के स्टूडेंट काफी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मकसद रहा मित्रों। और मैं आज कृषि यूनिवर्सिटी में इधर आई हूं, पशुपालन यूनिवर्सिटी में, तब कहूंगी हमारी 2 यूनिवर्सिटी कृषि, अयोध्या यूनिवर्सिटी कृषि यूनिवर्सिटी है, नेक में A++ प्राप्त किया है मित्रों, और पूरे भारत में सबसे प्रथम नंबर पर है। दूसरी मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी A प्राप्त हुआ है उसको मित्रों। और इसी वजह से पता चला कि हम कहाँ खड़े हैं। उसके कल्याण मेला जो होता है किसानों का, तब मैं जाती हूं, और किसानों के साथ बैठकर हम सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या जरूरत है। महिलाओं को पूछते हैं कि आप काम कर रहे हो, क्या जरूरत है। सोचिए भाई बहनों, मैं तो पशुपालन भी करके आई हूं, कृषि करके भी आई हूं, और
पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि पढ़े इस वजह छोड़ दिया उस, आज भी करते हैं। जब तक हमारी महिलाओं के साथ हम नहीं बैठेंगे, उनके पशु को क्या है वो तो वो ही स्वयं बताएगी, हम नहीं बता सकते हैं, वो स्वयं बताएगी। पहले दूध ज्यादा आता था, अभी कम हो गया, वो चल नहीं सकती है। पहले ऐसी थी, अभी वो हो रहा है, वो घास नहीं खा रही है। ये तो आप मिलोगे तो वो कहेगी आपको। दूसरा, सब जगह पानी अलग अलग है मित्रों, सब जगह पर्यावरण अलग अलग है और ऐसी मिट्टी अलग अलग है। और इसमें हम कृषि करते हैं, वेटरनरी का काम भी हम लोग करते हैं, तो हम ध्यान से नहीं देखेंगे। हमारे शिवराज सिंह चौहान मित्रों अच्छी बात करी, लैब टू लैंड 2003 में गुजरात में आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, तब कृषि रथ यात्रा का आयोजन किया था मित्रों, और सभी वैज्ञानिकों समर में बाहर निकाला था कि जाइए किसानों के बीच में बैठिए, किसानों को मिलिए, क्या प्रॉब्लम है। और लगातार 30 दिन तक पूरे गुजरात में गांव गांव कृषि रथ यात्रा जाती थी और कंपलसरी था हमारे लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, एमपीओ के लिए, जनता के लिए कि आपको भी रथ यात्रा के साथ जाना है, बैठना है और आपको भी सुनना है मित्रों। तब जाकर परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन आया मित्रों। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट, उनका जीवन पढ़ लीजिए मित्रों, कैसे महिलाएं संघर्ष करके आगे आती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती है मित्रों। ऐसी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी दीक्षांत समारोह में आप सबको अवार्ड देने के लिए आई है। मतलब ये नहीं है कि अवार्ड लेकर हम चले जाएंगे, लेकिन जो आप सुनते हो क्या जरूरत है वो धरती तक, हर किसान तक, हर महिला तक पहुंचाने का हम संकल्प करें और उसको जो चाहिए वो उसको मिले। बजट में काफी कुछ रखता है मित्रों, अब्बों रुपया का बजट आता है। मैं पढ़ती हूँ सब बजट और दीक्षांत समारोह में बताती हूँ कि भाई ये इतना बजट है, इस विषय में इतना बजट है, प्रोजेक्ट कितने बनते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना बजट हम लेकर आते हैं। ये भी सोचना तो साथ साथ में सोचना पड़ेगा, आप सबको सोचना पड़ेगा। और बजट का उपयोगी ना हो और बजट सरेंडर करना पड़े, वो तो हमारे लिए गौरव नहीं है मित्रों, बदनामी है कि हम बजट भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारी स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भारत सरकार का जितनी योजनाएं, आप कौन सी योजना को उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके वहाँ भेजना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए, समझाना चाहिए और वो बजट लेकर आना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए और किसानों तक पहुँचे इसके प्रयास करना चाहिए और हमारा पशुओं तक पहुँचे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि आप इसी क्षेत्र में हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और रोजगार देने वाला सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला एक क्षेत्र है मित्रों। और इसी वजह से आप सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा काम करते रहिए, अपने माता पिता को भी संभालते रहिए। जय हिंद। Thank you, ma'am. I humbly request the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to deliver the convocation address, please. इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान जी, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, सचिव डीआर एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, इस संस्थान के निर्देशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों। प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है, जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़ गई और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जो छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर
प्रतिबंध लगाना गिद्धों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपके शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जाए, क्योंकि जब गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन। गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ाव माताओं बहनों का ज्यादा है। इसलिए माता बहनें, हमारे यहाँ जमीन में भी काम ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं काम करते हैं आज भी। इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब ने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूं कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्यमों में सेवारत यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों भी इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज दुनिया भर में वन हेल्थ की अवधारणा महत्व प्राप्त कर रही है। इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि मानव, घरेलू तथा जंगली जानवर, वनस्पति और व्यापक पर्यावरण सभी एक दूसरे पर आश्रित है। हमें अपनी परंपरा और इस अवधारणा का अनुसरण करते हुए पशु कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थानों के रूप में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में विशेष रूप से जेनेटिक बीमारियां की रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हाल की
कोरोना महामारी में मानव जाति को आगाह किया है कि उपयोग पर उपभोग आधारित संस्कृति ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकती है। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूँ, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु जे हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया, जमीन बंजर हो गया। लेकिन उसको हम किस रूप से संरक्षण कर पाए, जमीनों का उर्वरता कैसे हम अच्छा कर पाए, इसी दिशा में सबको सोचना चाहिए। एक किसानों को भी और वैज्ञानिकों को भी, चिकित्सकों को, जनसाधारण को इसी दिशा में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि पशु संपदा का संरक्षण, उनका विकास हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इस मेले के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने से पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। टेक्नोलॉजी अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा और देखभाल में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहें। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I declare 11th IVRI convocation closed. I request everyone to please rise for the national anthem.
I kindly request everyone to remain standing at your places until the dignitaries on the stage leave the convocation hall. All the students of IVRI is requested to please stay back in the convocation hall. Honorable Union Minister